جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ، اور دوسرا کیسے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔ اور نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بابرکات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو دونوں کے گناہ ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا ہے کہ مل بھی رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور ہم مختلف نیکیاں مل رہی ہیں۔ جب بھی ملنا کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ، ہاتھ ملانا ہے اور کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود ہے الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ جو سا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ دونوں کے گزارنے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ درس میں وہی جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، لیکن آپ کے سلیبس میں بھی یہ دعائیں ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام رب الجلال واقعہ میں اس طرح دعا کرتا ہے اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اے میرے مالک مولا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا اگر تم نے معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کھایا، وَلَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم سارا پانے والے گاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ہمارے جدی ابی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کی۔ کوئی نبی علیہ السلام دعا کرتا ہے قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام دعا کرتا ہے رب انصرنی علی القوم الکافرین، تو کوئی نبی علیہ السلام رب سے دسترخوان مانگتا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا، یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ یہ اس طرح کی دعا ہے، بے شمار نبی کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ لیکن پیارے بھائیو میں مشورہ کرتا ہوں، جب باری تاجدار انبیاء کی آئی، جب باری حبیب خدا کی آئی، تمام انبیاء کے سردار کی آئی، تو میرے آقا رب سے نہ مال و منال مانگا، نہ جاہ و جلال مانگا، کیا مانگا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے ابو آپ فرما دیجیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، اضافہ فرما۔ پیارے بھائیو، علم کی بے شمار فضیلت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا علم والے اور بغیر علم برابر ہو سکتے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم دین کو ایک عابد سے ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر۔ کیوں فضیلت ہے پیارے بھائیو؟ ایک مرتبہ شیطان نے نہیں اپنے شاگردوں کی پورے ہفتے کی کارکردگی چیک کر رہا تھا کہ تم نے پورا ہفتہ محنت کر کے کیا کیا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اس کے چیلے کہتے ہیں جناب میں نے پورا ہفتہ محنت کی تو فلاں بندے کو زنا کرنے پر مجبور کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، چوری کروائی، جھوٹ بلوایا۔ تو ایک شیطان جو بالکل کمزور تھا وہ کہتا میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ ایک بندہ علم دین پڑھنے کی محفل میں جا رہا تھا، یہ علم دین کی محفل ہے ماشاءاللہ، ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب ماشاءاللہ بڑے اصل انداز سے کچھ جھوٹ کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، ارشاد فرمایا کہ کیا علم دین کی محفل میں جا رہا تھا، میں چند لمحے اس کے راستے میں حائل ہوا اور اس کو روک لیا کہ تیری والدہ بوڑھی ہے، اس کی خدمت کر، اس کے دودھ لانا ہے، دوائی لانی ہے۔ تو وہ بندہ علم دین کی محفل سے جانے سے رک گیا۔ اس کا شاباش اچھا کام کیا، اس کو گلے لگا دیا۔ جو باقی شیطان کے چیلے تھے جنہوں نے بڑے کارنامے کیے تھے، بڑے کارنامے ہم نے کیے، اس نے کام بھی کوئی نہیں کیا، صرف چند لمحے گیا اور ایک بندے بچے کو عالم علم دین کی محفل سے جانے سے روک لیا۔ اب اس کو گلے لگا رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بدھو چلے تمہیں کیا پتا اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے ایک مرتبہ میں ایک عابد کے پاس گیا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا، جن کے بارے میں عرب ہوتا ہے وَالَّذِي يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایسے بندے کے پاس گیا، عابد کے پاس جس کے پاس علم نہیں تھا، اس سے پوچھا بتا تیرا رب ہے؟ کہتا ہاں۔ تو شیطان نے اپنی جیب سے چھوٹی سی شیشی نکالی، کیا کہنے لگا بتا تیرا رب پوری کائنات کو ایک چھوٹی سی چیزی میں سمو سکتا ہے؟ تو وہ عابد کہنے لگا اتنے اتنے پہاڑ، شجر، حجر،
जबल ये तो बहुत बढ़िया है, एक छोटी चीज इसमें कैसे आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लगा जा, तूने कानून कुदरत का इनकार कर दिया। तेरा रब तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तेरा रब तो हर चीज पे कादिर है, जो चाहे कर सकता है। तू मुर्ताद हो गया है। तो प्यारे भाइयों, फिर वो कहता मैं एक आदमी दीन के पास गया, उसने भी यही सवाल किया। तो आलम जी ने कहा ये चीज़ी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब तो सुई के नाके में पूरी कायनात को समझ सकता है। ये चीज़ी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब तो पूरी कायनात को सुई के नाके में समझ सकता है। प्यारे भाइयों, आज की इल्म दीन की भरमार है। आज के बच्चे को न्यूटन के लॉ याद है, आइंस्टाइन की चूड़े याद हैं, इंग्लिश के 12 टेंस आते हैं, मैथ के सारे मसले आते हैं, जमूद के लॉ आते हैं। अफसोस आज हमारे बच्चों को याद नहीं है। तो ये पता नहीं है कि मैंने पाक कैसे होना है। मेरा बाप फौत हो गया है, मैंने अपने बाप को गुस्ल कैसे देना है। यकीन जानिए कि वही बाप जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो ही बाप की रूह निकल जाती है, तो शायर कहता है रूह निकली ते मुर्दा होयो हर कोई ते को डरदा, एक पल पर घर में रह न दिंदे, अरे तू मान करे जिस घर दा पैर भी साड़ वेड़ विच पियो कड्डो कड्डो करदे जिन्हां लई तू पाप कमावे। कितने तेरे घर दे ये घर वाले कितने खैर खा हैं, सिर्फ मोजा मिट्टू को ले जावणगे, किसे टोले सुट के आवणगे, घर आके बुल जावणगे, याद आया आया नहीं आया एमे मेरी मेरी करना ही, क्यों सब दी बेड़ी चढ़ना ही, खबरे कफन भी तेन सरना ही, किसे पाया पाया नहीं पाया। मौत तो हकीकत है, ये पता नहीं मरना कहाँ है। बड़ा प्यारे भाइयों, आज के बच्चे को ये पता नहीं कि वुज़ू की सुनन कितनी है, वुज़ू की सुनते कितनी हैं, वाजबात कितने हैं, फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। विषयों को पता नहीं, इमाम को पता नहीं कि नमाज की शराइत कितनी है, नमाज की फ़राइज़ कितने हैं, क्योंकि आप सीखते नहीं हैं। तो मेरे मुख्तलिफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल में माशाल्लाह सुबह बाद जैसे दरवेश लोग माशाल्लाह मौजूद हैं। मुझे माशाल्लाह आपको असल तरीके से तबलीग दी जा रहे थे। तो पूरा मेरी तरफ से ज़्यादा अगरचे तुम्हारे पास एक ऐद ही के इल्म क्यों ना, पहले भी अल्लाह करे आप डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बने, इससे आला जो डिग्री है वो हासिल करें। लेकिन उसके साथ साथ आप आलम दीन की महफिल में बैठने, आप हाफ़िज़ कुरान बने, आप माशाल्लाह आलम दीन बने। जितना हाफ़िज़ कुरान का ज़हन माशाल्लाह फ़र्क होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना आम लोगों का नहीं होता। भी मैं हमेशा मसला देता हूँ कि हमारे कज़न हैं मेरे, तो 4 भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं। वो चारों, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक माशाल्लाह 2 इंजीनियर हैं। लेकिन जो इस हिफ़्ज़ में नहीं आए वो 3 बाकी हैं, उनकी तीनों की एफिकली एक तो मैट्रिक से भी आ गया है, अंडर मैट्रिक है, 2 मैट्रिक आगे खिंच आगे। लेकिन पहले जो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुतला हैं। तो अल्लाह करे आप भी जब हाफ़िज़ कुरान बनेंगे ना तो आपका दिल इतना फ्री हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास ये जमूद के लॉ या जिसने अपने वो फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पढ़ने लिए पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि जिसके सीने में कुरान होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जहाँ भी जाएगा हर मिसाल उसका होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आप अल्हम्दुलिल्लाह के जहाँ अपने बच्चों को तिलावी तरीके के लिए स्कूल भेजते हैं, सप्लाई भेजते हैं, दिन भेजते हैं, कल्चुल ईमान भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेड मास्टर साहिब अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन हैं, आशिक़ रसूल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरीक़ से उनका वाबस्तगी है। तो मेरी आपसे मदनी इल्तिजा है कि अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने जो कुर्ब जवार में बच्चे उनको दावत दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में आके देखें, हमारे स्टाफ साहब माशाल्लाह हमें दुनियावी तलीम के साथ साथ हमें दीनी तलीम से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सिखाते हैं कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, दुआए की रूह कब पढ़नी है, जब कोई फौत हो जाए उसे क्या पढ़ना है, हमें सिखाते हैं कि अपने वालिदैन का क्या मकाम है। तो बच्चे को पता नहीं, जो अक्सर सुनने को मिलता है आज रोटी लेट होगी, बच्चे ने माँ को गाली निकाल दी। अगर बच्चे को पता हो, उसकी तरबियत हो कि कतब अल्लाह ताला लहू बिकुल्लि फ़ितरतिन हज्जतन मबरूरा, वालिदैन के चेहरे अनवर को देखने से क्या मिलता है, मकबूल हज का सवाब मिलता है। अपने वालिदैन के चेहरे अनवर को देखने से क्या मिलता है, मकबूल हज का सवाब। मकबूल लाखों रुपया ला के हज करने जाते हैं, पता नहीं हज कबूल या कि ना हो, लेकिन वालिदैन को प्यार से देखो, मकबूल हज का सवाब मिलता है। पैसे भी कब पता चलेगा, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कूल में आएंगे। तो अपने कुर्बो जवार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कराम तशरीफ़ फरमा है। तो नाज़िम भाई की ये ख्वाहिश थी कि मेरे स्कूल में कराम तशरीफ़ लाए ताकि इनकी ज़ियारत भी हो, और कराम की ज़ियारत करना भी इबादत है। तो
प्यारे भाइयों, आप भी प्यारे बच्चों, आप भी उलमा किराम की ज़ियारत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी यकीन है कि आपका स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का सबसे आइडियल स्कूल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली स्कूल होगा। तब होगा जब आप मिलकर कोशिश करेंगे। आप गांव में दावत देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ अच्छा है, हमारा स्कूल अच्छा है, हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म हमें फ्री मिलती हैं, बैठने के लिए डेकोरेशन रूम है, माशाल्लाह सिटिंग का अच्छा इंतजाम है, अच्छे वो क्या कहते हैं कि बेंच हैं, कुर्सियाँ जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्ले के लिए तो चित्राल स्कूल का ग्राउंड सबसे आला। राजा हम पढ़ते थे ना, तो हम चित्राल स्कूल में मैच खेलने आया करते थे। मैं लखनऊ में पढ़ता था तो चित्राल स्कूल की ग्राउंड सबसे अच्छी ग्राउंड होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड के हिसाब से भी ये स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड भी है, साथ पार्किंग भी है। तो हम सबको अपने बच्चों को इन अच्छे स्कूलों में दाखिले की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो सुना सराय तो तौफीक अता फरमाए और दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। दुरूद उस पर जो आए सादिकुल वादो अमीन बनकर, सलाम उन पर जो आए खातमुन नबिय्यीन बनकर। सुभान अल्लाह। नहायत ही वाजिब एहतराम उस्ताद किराम, उलमाए किराम और प्यारे तुलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह दौरान असम्बली बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम दीन से मुताल्लिक़ ये बहुत ही अच्छा है। हमारी सादतमंदी है कि यहाँ पे हमारे साथिया किराम जो हैं, टीचर हजरात हैं, ये माशाअल्लाह दीन के साथ रिलेटेड हैं, दीन के साथ इनका ताल्लुक़ है, दीनी है, माहौल दीनी है। माशाअल्लाह हमारे हर मास्टर साहब हमारी खुशनसीबी है, बहुत अच्छे हैं और दीन के साथ लगाव है, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान हैं। तो मेरे मुझसे कबल उलमा इकराम बयान फरमा रहे थे। बात यह है कि इस दौर में यहाँ तक हो चुका है, मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कि यहाँ पे आज इस दौर में पुरफितन दौर में ये हो रहा है कि कभी तो हमारे अकायद पर डाके हो रहे हैं और कभी हमारे अकायद पर और कभी हमारे दीन पर, हमारे ईमान पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। शैतानी कुव्वतें, तागूती कुव्वतें जो हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये लोग इनके दिलों से खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाली जाए, इनके दिलों से आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत निकाली जाए। मगर याद रखो, जहाँ पे हमने दीगर तालीमात हासिल करनी है वहाँ पे हमें इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और गौर करनी चाहिए और ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है। वो क्या है कि याद रखें, हमारा ये अकीदा और ईमान मजबूत होना चाहिए कि हमारे प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने उनको ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत बनाकर कायनात में मबूस किया। कायनात में कोई और नबी उनके बाद नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमा दी है, वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि अल्लाह ने अपने रसूल को ख़त्मे नबुव्वत का ताज अनायत फरमा दिया है, उनके सरे पर सजाया है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है शैतानी कुव्वतों की जानब से, तागूती कुव्वतों की जानब से, लिटरेचर के ज़रिए और तहरीरों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन मुसलमानों के, ईमान वालों के दिलों से, ईमान वालों और इन मुसलमानों के दिलों से निकाली जाए ये बात। मगर याद रखो, नर्सरी से लेकर छोटे बच्चों से लेकर
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से यही नारा होगा और हाई क्लासेस तक और बल्कि कॉलेजेस तक बल्कि यूनिवर्सिटीज तक यही होना चाहिए कि ताजदार खत्म नबूवत। ये नारा कोई सियासी नहीं है, ये ईमान वालों का नारा है और मुसलमानों का नारा है, ये इस्लाम का नारा है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हम सबको इस अकीदे पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अमाल साले वाली जिंदगी और खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। चौधरी اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। جو دوران اسمبلی یہاں پہ ان چھوٹے بچوں نے اور پیارے اساتذہ کرام نے ہمارے علماء کرام نے یہاں پہ جو پڑھا سنا ذکر کیا جو بیانات ہوئے اللہ پاک اپنی سفارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کا رجحان اس ادارے کی طرف کر دے اور لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آ کے اپنے بچوں کو داخل کروا۔ اے اللہ ان سب بچوں کو نیک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علم اور عمل بھی عطا فرما۔ آمین یا اللہ ترقیاں عطا فرما، آمین عطا فرما۔ آمین وہ قوم کے لیے ایک عظیم انسان بن کے پورے اے اللہ ان سب کو ترقیاں عطا فرما۔ آمین کرام کی خیر فرما، ادارے کو دن دن رات چوبیس ترقی عطا فرما۔ آمین آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعائی دعائی صلی اللہ